Coronavirus officially hitting the US. पाकिस्तान में मजीद 20 अफराद कोरोना वायरस से चल बसे। कोरोना की बड़ी खबर आप जान लीजिए। कोरोना संक्रमण का नया आंकड़ा सामने आ गया है देश में, और नया आंकड़ा क्या है ये भी आप जान लीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली अफजल और आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को कोरोना वायरस के बारे में आगाह करूं और कोरोना वायरस के बारे में जो मिथ पूरी दुनिया में या जो मिथ हमारी सोसाइटी में पाए जा रहे हैं वो मैं आपसे शेयर करूं। टॉपिक पर जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कोरोना वायरस के बारे में बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है कि जिसकी शक्ल एक क्राउन की तरह है और ये वायरस चाइना के एक शहर वुहान से शुरू हुआ और वहाँ से इसने अपनी शुरुआत ली और आज इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। जैसा कि नाज़रीन हम सबको ये मालूम है कि ये वायरस चाइना से पूरी दुनिया में फैला और फैलने के बाद दिन ब दिन केसेस बढ़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ये वायरस कोरोना वायरस नहीं है, ये वायरस एक चाइनीज़ वायरस है कि जो चाइना से पूरी दुनिया में फैला है और चाइना से कोई भी अपनी तिजारत या गुड्स या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ना करे। I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus. Why do you keep calling this the Chinese virus? There are reports of dozens of incidents of bias against Chinese Americans in this country. Your own aide, Secretary Azar, says he does not use this term. He says ethnicity does not cause the virus. Why do you keep using this? A lot of people say it's racist. और थोड़ी ही देर बाद चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ये चाइनीज़ वायरस नहीं है, ये वायरस डोनाल्ड ट्रंप की एक साजिश है। Recently, some politicians in the United States have linked the new coronavirus to China, which is a stigmatization of China. We're strongly indignant and firmly opposed to it. जैसा कि नाज़रीन एक और मिथ भी सामने आ रहा है कि ये चाइना के एक लैब में से एक्सीडेंटली ये वायरस लीक हो गया है। इस माहिरीन ये कहते हैं, अभी इस बात में कितनी सच्चाई है ये अल्लाह बेहतर ही जानता है। We have always believed that the origin of COVID-19 is a scientific question which should be resolved by scientists. I would like to remind you that the World Health Organization has repeatedly stated that there is no evidence COVID-19 originated in a laboratory. और ये भी मिथ हमारी सोसाइटी में पाया जा रहा है कि मच्छर के काटने से क्या कोरोना वायरस हो जाता है। Well, as the weather warms, that means mosquito season, and as coronavirus concerns ramp up, some of you are wondering if the pesky insect could play a role in the pandemic. Liza Lucas verifies. The buzz around mosquitoes is building, and inquiring minds want to know, are mosquitoes carriers of COVID-19? We checked with experts including the World Health Organization, the CDC, and Harvard's T.H. Chan School of Public Health to answer your question. All of these experts agree there is no information or evidence to date that the new coronavirus could be transmitted by mosquitoes. और हमारी सोसाइटी में एक मिथ ये भी पाया जा रहा है और बड़ा कॉमन मिथ है कि गर्मी की वजह से कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है, बल्कि रिसर्चर ये कहते हैं कि गर्मी की वजह से कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होता, गर्मी में ये किसी को भी लग सकता है और ज़्यादा फैल सकता है। As the US ramps up its response to the novel coronavirus, President Trump has repeatedly suggested a reprieve is just around the corner. I think when we get into April and the warmer weather, that has a very negative effect. There's a theory that in April, when it gets warm, historically that has been able to kill the virus, so we don't know yet. One theory, when it gets a little warmer, it miraculously goes away. I hope that's true. You know, in April, supposedly it dies with the hotter weather. A lot of people think that goes away in April with the heat. As the novel coronavirus continues to spread worldwide, one common theory is that the pandemic will die down when warmer weather arrives. Looks like by April, you know, in theory, when it gets a little warmer, it miraculously goes away. I hope that's true. But the answer is a little more complicated than that. So why do so many people think that summer will stop the COVID-19 spread? Being a Muslim और अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोरोना वायरस को देखें तो हमारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल कबल एक बात अपनी हदीस में बोली। The Prophet taught us that one should not enter nor leave a land affected by a plague. और ये बात
चाइना ने साबित करके दिखा दी कि वुहान में जब 21 दिसंबर 2019 को पहला केस रजिस्टर हुआ तो चाइना ने किस तरह इस बात पर अमल किया और वुहान को पूरा लॉकडाउन कर दिया और अब उन्होंने वहां से निजात डाल दी इस बला से। मुझे ये लगता है कि हमें सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए कि पूरी दुनिया में किन किन ममालिक को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और किन ममालिक को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मेरे ख्याल के मुताबिक मेरा अंदाज़ा जो है या जो मेरी रिसर्च है, जो मैंने इस टॉपिक को लेके पढ़ा है, वो ये है कि एक मुल्क के अलावा सारे ममालिक दुनिया में जितने भी हैं सबको नुकसान हुआ है। वो एक मुल्क जो है वो सिर्फ एक चाइना है। वो चाइना इसलिए है, चाइना के पास पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के शेयर्स हैं जो रिसेंटली चाइना ने कोरोना वायरस के बाद 30 से 40% खरीद लिए हैं। पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनीज थी उनके सबसे ज़्यादा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो अभी रिसेंटली ऑयल मार्केट में क्रैश आया है वो ये इस तरह हुआ है कि पूरी दुनिया में इवन दो कि USA, रशिया, सब में, सऊदीया में आपके पास स्टोरेज की कमी हो गई है। ऑयल आपके पास इतना प्रोड्यूस हो रहा है, आपके पास जगह नहीं है रखने की। चाइना ने ये किया है कि चाइना ने अपने पास स्टोर करना शुरू कर दिया है। World's worst fears coming true. China profiting from the pandemic. As global economy sinks and sinks, China is opening for mega business. China eyes billions from the corona crisis, eyeing global emergency demand from the world. China opens factories, eases its own lockdown. World shuts down, but China sees profit. मेरे तज़किए के मुताबिक आने वाले चंद रोज़ US के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी। वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है, जो मेरा ज़ाती ओपिनियन है, मुझे ये लगता है कि चाइना नंबर 1 हो जाएगा आने वाले कुछ दिनों में, या जब ये कोरोना वायरस की वबा ख़त्म हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि चाइना ने अपने मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस भी ख़त्म कर लिए हैं और अपनी इकोनॉमी को भी स्टेबल किया हुआ है और अब पूरी दुनिया की नज़रें चाइना पर है। देखना अब ये होगा कि क्या चाइना नंबर 1 पर आ सकता है या नहीं। क्या US ही नंबर 1 पर रहेगा।